ہیومن رائٹس میں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ہیومن رائٹس میں ہم بہت سارے ایشوز کو زیر بحث لاتے ہیں۔ ہم سماجی ایشوز کو بھی سامنے لے کے آتے ہیں، ان سیاسی ایشوز کو بھی لے کے آتے ہیں جن کا تعلق براہ راست انسانی حقوق سے ہوتا ہے۔ آج ہیومن رائٹس میں ہم بات کریں گے نظام انصاف کا ایک اہم ادارہ NIRC، جسے نیشنل انڈسٹریل ریلیشنز کمیشن کا نام دیا جاتا ہے، اور اردو میں اس کو آپ قومی صنعتی تعلقات کمیشن کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ وہ واحد ادارہ ہے جو پورے پاکستان کے اندر ان اداروں کے ملازمین، ان فیکٹریوں کے ملازمین، وہ ادارے، وہ فیکٹریاں، وہ اسٹیبلشمنٹ جو ایک صوبے سے زیادہ صوبوں میں بیک وقت اپنے دفاتر رکھتی ہیں یا کام کرتی ہیں، ان اداروں میں جتنے مزدور کام کرتے ہیں، وہ مزدور جو ہے وہ انصاف کے لیے ان کے پاس صرف یہی ایک ادارہ ہے جسے صنعتی تعلقات کمیشن کا نام دیا جاتا ہے، اور جہاں پہ ایک مزدور اپنی شکایت لے کے جاتا ہے، جب اس کو نوکری سے فارغ کر دیا جاتا ہے، اس کو ڈسمس کر دیا جاتا ہے، ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے، یا اس کو یونین بنانے کا حق نہیں دیا جاتا، کوئی بھی اس کا گریونس، اس کی داد رسی ہے، وہ ہر اپنی داد رسی لے کر اس ادارے کے پاس جاتا ہے۔ اور بمطابق قانون ہم اس پہ بات نہیں کرتے کہ کتنا انصاف ملتا ہے اس ادارے سے اور کتنا نہیں ملتا، اس پہ بھی کبھی بات کریں گے۔ ہمارا آج کا جو ہیومن رائٹس کا جو ایشو ہے وہ اس ادارے میں ہونے والی تقرریوں سے متعلق ہے، جو کہ گزشتہ 10 ماہ سے نہیں ہوئی۔ 10 ماہ سے مجھے یہ بتائیے کہ ایک ادارہ جس میں 10 ماہ سے 4 ممبرز کی تقرریاں ہونی تھیں، 4 جوڈیشل آفیسرز آنے تھے، ججز آنے تھے، وہ ادارے میں 10 ماہ سے آپ نے تقرری تک نہیں کی، تو انصاف کا سوال تو بعد میں آئے گا، جب اس انصاف کی کرسی پر آ کے کوئی بیٹھے گا۔ تو موجودہ حکومت سے یہ سوال ہے کہ آپ نے جب تقرری ہی نہیں کی تو اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ آپ مزدور کو انصاف نہیں دینا چاہتے؟ کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ امپلائر جو ہے، مالک جو ہے، وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ کہتا ہے کہ خبردار آپ نے NIRC میں ممبر کو اپوائنٹ نہیں کرنا، کیونکہ اس میں جو شکایت ہے اس مزدور کی ہے، بیچارے مزدور کی، جس کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا ہے، اور وہ انصاف کے لیے وہاں پہ بیٹھا ہے، اور جب عدالت ہی نہیں ہوگی، جب ممبر ہی نہیں ہوگا، جب کوئی جج ہی نہیں ہوگا، تو پھر وہ تھک ہار کے کہے گا کہ مجھے تو یہاں سے انصاف نہیں ملتا، میں کوئی اور جاب کی تلاش میں نکلوں، یا وہ تھک ہار کے گھر بیٹھ جائے گا، یا ہم جو سنتے ہیں دیکھتے ہیں مایوس ہو جائے گا نظام انصاف سے۔ تو پھر کیا اس کا یہ مطلب لیا جائے؟ کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ حکومت جو ہے وہ اپنے من پسند افراد کی تلاش میں ہے اور ابھی ان کو اپنے لائلسٹ نہیں مل رہے؟ کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے؟ کیوں آخر جو ہے وہ وزارت قانون اور وزارت جو انسانی حقوق ہے، میرا اس سے بھی سوال ہے، اور وزارت جو ہیومن ریسورس ہے، اوورسیز ہے، جو وزارت محنت کی جگہ اور لیبر کی جگہ قائم کی گئی، کیوں 10 ماہ سے جو ہے وہ NIRC میں آپ نے تقرری کیوں نہیں کی؟ یہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مزدور دوست حکومت ہیں، آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے مزدوروں کے لیے، ہم نے ان کی اجرت میں اضافہ کیا ہے، ہم نے ان کی جو تنخواہ تھی کم سے کم جو اجرت ہے اس کو بھی بڑھایا ہے۔ تو اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں تو یہ کیا آپ اس کو پریارٹائز نہیں کر سکے؟ آخر کیا وجہ ہے؟
तरफ वजारत कानून से भी सवाल है। मैं फ़रोग नसीम साहब का मुझे बहुत एहतराम है एज ए लॉयर, लेकिन मुझे दुख भी उससे उतना ही ज़्यादा है, क्योंकि जिससे आप समझते हो कि वो कोई काम करेगा और वो भी ना करे तो फिर दुख का इज़हार भी उसी से होता है। जब आप एक बुनियादी जो सिलसिला है वो आप नहीं करेंगे तो। और आप कानून को देखें, कानून जो है नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन का जो एक्ट है, इस वक्त मेरे हाथ में ये नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट है 2012। अब इसका सेक्शन 33 देखें। सेक्शन 33 सब सेक्शन 4 कहता है कि जब आप किसी मज़दूर को निकालते हैं या उसका कोई भी दादरसी के लिए वो NIRC जाना चाहता है तो वो एक नोटिस देगा अपने मालिक को, और जो मालिक है उस नोटिस के ऊपर 7 दिन के अंदर फैसला करेगा। जब 7 दिन के अंदर फैसला करेगा तो फिर अगर वो फैसला ना करे तो फिर उसके बाद वो एक मज़दूर जो है, एक वर्कर है, वो नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन में अपना केस लेके जाएगा, कमीशन में अपना केस दाखिल करेगा, और कमीशन जो है इस केस का फैसला 7 दिनों के अंदर करेगी। अलमिया देखिए इस मुल्क का कि कानून ये कह रहा है, सेक्शन 33 सब सेक्शन 4, ये मैं रेलेवेंट पढ़े देता हूँ। If the employer fails to communicate a decision within the period prescribed in subsection 2, जो मैंने बताया है कि वो 7 दिनों के अंदर फैसला करेगा एम्प्लॉयर जो है, or as the case may be section 3, if the worker is dissatisfied with such decision, कि अगर वो उससे डिससेटिस्फाइड है, जो उसने मालिक ने फैसला किया है, डेफिनेट है उसने तो उसके हक में नहीं करना ना, तो फिर जो है जो वर्कर है वो अपने केस जो है मैटर इज टेकन टू द कमीशन एंड इट शैल गिव ए डिसीजन विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ मैटर ब्रॉड बिफोर इट। मुझे ये बताइए कि कानून ये कहता है कि जब कमीशन के पास फैसला मामला आएगा तो 7 दिनों के अंदर कमीशन फैसला करेगा। आप फैसला तो दूर की बात, और हम देखते हैं कि ये 7 जो दिन हैं ये 7 महीनों में भी नहीं चलते, ये 7 कई दफ़ा 7 सालों में चले जाते हैं। क्योंकि इसी तरह जब आप अपॉइंटमेंट करते हैं, जजेस की कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट करते हैं 2 साल या 3 साल, उसके बाद वो अपना टेन्योर पूरा करता है, फारिग हो जाता है, फिर आप साल और साल उस नए जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं करते। अदालतें उसी तरह जो है वो काम नहीं हो रहा होता और तारीख पे तारीख जो है वो पड़ती जाती है और मज़दूर बेचारा पिट के रह जाता है। ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है उस मज़दूर के साथ जिसको कानून में जब इनिशियली बना था ऑर्डिनेंस 1969 का, 70s के बाद जब लेजिस्लेशन हुई तो आपने कह दिया कि मज़दूर का जो फैसला है वो 7 दिनों में हुआ करेगा। वो क्या 7 दिनों में होना है जहाँ पे आप जजेस की अपॉइंटमेंट जो है, जो मेंबर्स की अपॉइंटमेंट है वो आप ना करें। इस वक्त 4 मेंबर्स की अपॉइंटमेंट होना बाकी है। चेयरमैन साहब हैं जो डील कर रहे हैं, एक रजिस्ट्रार हैं। अब 4 मेंबर्स जब तक नहीं होंगे तो फुल बेंच नहीं बनेगा और मामला आगे नहीं बढ़ेगा। मैं इस अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इंसाफ के सबसे बड़े ओहदे पर बिठाया है कि वो NIRC में जो मेंबर्स का तकर्रर नहीं हुआ इस पर सुओ मोटो लें। ये इतना अहम मामला है कि आप जजेस का हुकूमत तकर्रर ही नहीं करे, और बल्कि इसका तकर्रर तो सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। ये हुकूमत से हम सेपरेशन ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं, ये अभी भी जो है वो हुकूमत ने मुतय्यन करने हैं मेंबर्स वहाँ पे, तो हुकूमत के खिलाफ फैसले कैसे आएंगे? फॉर द टाइम बीइंग चलें हुकूमत ही करे, पर करे तो सही। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट होगी ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि वो NIRC में मेंबर्स जो अभी तक 4 मेंबर्स का तकर्रर होना है वो
10 माह से नहीं हुआ, इस पर अज़ खुद नोटिस ले और फौरी तौर पर जो है वो मेंबर्स को जो है वो का तकर्रर करे, ताकि जैसी तैसी भी है इंसाफ की गाड़ी तो चले आगे। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, अभी चंद माह कबल ही एक जुडिशल कॉन्फ्रेंस हुई, यूरोपीय यूनियन ने वो उसका इनेकाद किया और उन्होंने बताया कि मज़दूरों के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं ये नहीं होनी चाहिए, और वहाँ पे ऑनरेबल जस्टिस जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब, बहुत बड़े ह्यूमन राइट्स के हवाले से उनके बहुत सारे अहम फैसले हैं जो कि लायक सब तहसीन है और पढ़ने के काबिल हैं, और बहुत उनका एहतराम है वकला के अंदर और जजेस के अंदर। और उन्होंने वो एड्रेस किया उस कॉन्फ्रेंस को, और मुझे अभी भी जुमला याद है जो प्रेस में सामने आया कि जो लेबर अदालतों के जजेस हैं और जो जिसमें NIRC के जजेस भी हैं, और वहाँ पे पूरे लेबर कोर्ट्स के जजेस तशरीफ़ फरमाते हैं, उन्होंने फरमाया कि जो जजेस हैं लेबर अदालतों के, दे शुड वियर द कैप ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब ये कितनी बड़ी खूबसूरत बात थी, लेकिन ये बात कहाँ गई? हुकूमती ओहदेदारों ने और हुकूमत ने हवा में उड़ा दी और उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा और हमारे सामने है। लिहाजा बेहतर है कि आप जो है वो इसका नोटिस लें। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इसका नोटिस लें और फौरी तौर पर जो है वो जो जजेस का तकर्रर करे NIRC के अंदर, ताकि मज़दूरों के साथ जो इंसाफ के मामलात हैं जिसका आप दावा करते हैं वो आगे बढ़े, और जैसे तैसे भी है वो निज़ाम तो चले। आपने तो निज़ाम को मुअत्तल कर दिया जजेस को ना बैठा के, और बीसियों केसेस ज़ेरे अल्तवा हैं, सैकड़ों केसेस ज़ेरे अल्तवा हैं। मेरी अभी कल ही बात हो रही थी वहाँ पे, और आज भी इस्लामाबाद में हूँ, मैंने देखा वहाँ पे मैं बहुत सारे वकला से भी रब्ता हुआ, जिनमें काजी नईम कुरैशी साहब थे और इस तरह दूसरे वकला से भी, और एक इज़्तिराब की कैफियत है और इस इज़्तिराब को दूर करना हुकूमत का काम है। हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी इस पर एक्शन ले। बहुत शुक्रिया। जाने से पहले ह्यूमन राइट्स की के सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह ने के बाद।